Curl Pearson's coefficient of correlation between two variables capital X and capital Y, usually denoted by usually denoted by R, simple R, or in R here bracket like write the variables x comma y or R x y is a numerical measure of linear relationship. Numerical measure of linear relationship between them and defined as curl Pearson's coefficient of correlation between x and y, defined as R is equal to covariance of xy divided by sigma x, it means standard deviation of x, and sigma y, standard deviation of y. Covariance can be denoted with sigma xy. This is the symbol to denote covariance upon sigma x, sigma y. So this is the correlation coefficient between the variables x and y. Covariance between xy divided by sigma x and sigma y. Standard deviations. It is also called product movement method. Another name for this is it is also called product movement method. Curl Pearson's coefficient of correlation between two variables x and y, usually denoted by r or r of x comma y, rxy, and is numerical measure of linear relationship. Linear means like लीनियर फंक्शन है जो, तो उसी टाइप का आएगा जैसे लाइन का आ जाता है. इसके आगे करेंगे लाइंस ऑफ रिग्रेशन, रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे, वो लीनियर फॉर्म में आएगा, लीनियर रिग्रेशन. सो दिस इज लीनियर रिलेशनशिप between them and defined as R is equal to covariance xy divided by standard deviations of x and y. Now further, we may substitute here the value of covariance and the formulas of standard deviation. So we may write R in new form.
as covariance of xy is equal to expected value of x minus x bar into y minus y bar is equal to, in the form of summation xi minus x bar is the mean of this series denoted with x, yi minus y bar is mean of the second series, and divided by n. And sometimes this value is denoted with mu11, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, mu is used to denote the mean, तो इस टाइप को हम डिनोट करेंगे mu11 से. सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर expected value of x minus x bar square. So this is 1 by n summation xi minus x bar whole square. Sigma y square, variance of the second series, expected value of y minus y bar whole square is equal to 1 by n summation yi minus y bar whole square, ऐसे लिख सकते हैं. Thus R is equal to, coefficient of correlation is equal to, on substituting the values of covariance and standard deviations. So value is 1 by n summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by sigma x square, here 1 by n summation xi minus x bar square 1 by n, इसका अंडर रूट डाल देंगे yi minus y bar whole square, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट कंबाइन भी लिख सकते हैं. तो कैलकुलेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, कोवेरियंस की वैल्यू लिख दी एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू लिख दी. क्लियर? नो अनदर फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, हम इसको एक और फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वो कैसे? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई is equal to summation 1 by n summation xi minus x bar into yi minus y bar is equal to, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 बाई एन समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार
इस फॉर्म में 1/n इज मल्टीप्लाइड ओनली विद फर्स्ट टर्म समेशन एक्स आई वाई आई, उसके साथ ही 1/n है सेकेंड टर्म ओनली एक्स बार वाई बार, इनकी प्रोडक्ट। तो जे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, स्पेशल यूज करेंगे, एक दो स्टेप्स बीच में आएंगे, उसके बाद ये फाइनल आ जाएगा। एंड इसी तरह वेरिएंस को भी आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्र 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्र इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्र माइनस एक्स बार स्क्र। इसमें भी 1/n ओनली फर्स्ट टर्म से है, 1/n समेशन इंटू समेशन एक्स आई स्क्र, एंड एक्स बार स्क्र सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ 1/n नहीं। सिग्मा वाई स्क्र इज इक्वल टू 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्र इज इक्वल टू 1/n समेशन वाई आई स्क्र माइनस वाई बार होल स्क्र। सिग्मा वाई स्क्र इज इक्वल टू 1/n समेशन वाई आई स्क्र माइनस वाई बार स्क्र। उसमें भी जो 1/n है वो ओनली फर्स्ट टर्म से है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स 1/n समेशन एक्स आई स्क्र माइनस एक्स बार स्क्र। सेकेंड वो सिग्मा वाई 1/n समेशन वाई आई स्क्र माइनस वाई बार स्क्र। तो इसका भी यूज कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। एक एक इसकी और टाइप आएगी। सेकंड आल्सो एक्स बार कैन बी रिटन एज समेशन एक्स आई अपॉन एन, वाई बार समेशन वाई आई अपॉन एन। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, हमने लिखा 1/n समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय 1/n समेशन एक्स आई स्क्र माइनस एक्स बार स्क्र 1/n समेशन वाई आई स्क्र माइनस वाई बार स्क्र। अगर एक्स बार वाई बार की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें,
तो एक न्यू फार्मूला, न्यू फॉर्म आ जाएगी इसकी, वो लिख लें, इज इक्वल टू एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स आई स्क्र माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्र। वाई के लिए जो है वो आएगा एन समेशन वाई आई स्क्र माइनस समेशन वाई आई होल स्क्र। जो समेशन वाई आई स्क्र है उसमें क्या होगा कि पहले वाई आई का स्क्र करेंगे फिर सम करेंगे। तो समेशन वाई आई होल स्क्र में क्या है, पहले वाई आई लिखेंगे, उनका सम करेंगे, फिर उसका स्क्र करेंगे। इसका अंडर रूट आएगा ऐसे। इन सभी फार्मूले से कोई एक यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स आई इंटू वाई आई, इसमें इनकी प्रोडक्ट होगा, बाद में समेशन होगा, माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्र माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्र। एंड सेकेंड वाई के लिए है एन इंटू समेशन वाई आई स्क्र माइनस समेशन वाई आई होल स्क्र। क्लियर? Yes, sir. The properties of correlation coefficient. Properties of correlation coefficients. Coefficient. First, value of r lies between -1 and 1. This is very important. जो r की वैल्यू है वो -1 एंड 1 से ही आएगी। If rxy is equal to 0, it means no correlation in x and y. Rxy is equal to ryx. This is symmetric. Correlation coefficient is symmetric. Correlation coefficient is a pure number. Correlation coefficient is a
प्योर नंबर यूनिटलेस, इसका यूनिट नहीं आएगा, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आएगा। R equal to 1 means perfect positive correlation. Perfect positive correlation. R equal to -1, perfect negative correlation. अगर R जीरो के क्लोज हो तो फिर लिख देंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर जीरो के पॉजिटिव साइड लिख लें तो लिख देंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जीरो नेगेटिव साइड पर है, उसके अप्रोक्सीमेट जीरो के, तो लिख देंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट is independent of change of scale and origin. If x is equal to if u is equal to x minus a by h, b is equal to y minus b by k, a b h k are constants, assumed mean लिख देते थे a b को, then then correlation coefficient of xy is same as correlation coefficient of ub। xy एंड ub का correlation coefficient सेम होगा। वो क्यों? क्योंकि जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो स्केल चेंज करने से, ओरिजिन शिफ्ट करने से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एच एंड के को आप 1 लिख लें तो ये आ जाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं एच के से तो ये बन जाता है चेंज ऑफ स्केल। तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन कैलकुलेट कर्ल पेयरसन्स coefficient of correlation between x and y given data is x y 2 3 6 5
4 3 5 7 8 7. Y is 6 5 4 5 7 10 9 7 8 9. तो टू कैलकुलेट कर्ल पेयरसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आप जो मैंने दो तीन इसकी टाइप्स लिखी मेथड की, उनमें से कोई एक यूज कर लें। इसका भी यूज कर सकते हैं, आर इक्वल टू एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई ऐसे, इसका भी यूज हो सकता है। इसके पहले हमने जो लिखा था ये टाइप है, इसका यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा, इसको भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि डाटा किस टाइप का है। तो मोस्टली वी हैव टू यूज दिस, ये जो नोट वन लिखा, इसमें जो टाइप है इसका यूज करेंगे। एक्स बार फाइंड करें, वाई बार फाइंड करें, समेशन एक्स आई वाई आई, ये हम कैलकुलेशन टेबल क्रिएट कर लेंगे। एक कॉलम एक्स आई स्क्र इसका क्रिएट हो जाएगा, वाई आई स्क्र उसके लिए। We know that R is equal to 1 by n summation xi yi minus x bar y bar divided by under root 1 by n summation xi square minus x bar square 1 by n summation yi square माइनस वाई बार स्क्वायर, ऐसे। एन क्या है डाटा का साइज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये 10 है। इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। तो कैलकुलेशन टेबल एक्स वाई, एक्स आई वाई आई, आई लिखना, आई लिख ले, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स आई वाई आई डिनोट करना स्मॉल में भी, उसको कर लीजिए एक्स आई वाई आई। एक्स आई की वैल्यू 2 3 6 5 4 3 5 7 8 7, 2 3 6 5 4 3 5 7 8 7। वाई आई की वैल्यू 6 5 4 5
7 10 9 7 8 9। फॉर्मूले में क्या चाहिए? एक्स आई वाई आई, एक्स आई स्केयर वाई आई स्केयर। जहां लिख लेंगे एक्स आई वाई आई, एक्स आई स्केयर वाई आई स्केयर। एक्स आई वाई आई मल्टीप्लाई करें 12 15 24 25 28 30 45 49 64 63। एक्स आई वाई आई ऐसे लिख देंगे। इसका सम यहाँ नीचे आ जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई। एक्स आई स्केयर 4 9 36 25 16 9 25 49 64 49। समेशन एक्स आई स्केयर चेक करें कितना आ रहा है। वाई आई स्केयर 36 25 16 25 49 100 81 49 64 81। इसका टोटल आ जाएगा समेशन वाई आई स्केयर। करें फाइंड, क्या आ रहा है टोटल? समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, ये भी चाहिए, ये भी लिख लें। करें टोटल क्या आएगा? समेशन एक्स आई 52। 52 आ रहा है। यस सर। सर 50 आ रहे हैं। 50 आ रहा है। समेशन वाई आई 70। 70। एक्स आई वाई आई 355। एक्स आई स्केयर 286। वाई आई स्केयर 526। एक्स बार वाई बार लिख लें, क्या आएगा? समेशन एक्स आई अपॉन एन 50/10 5 वाई बार समेशन वाई आई अपॉन एन 70/10 7।
and now use in the formula of correlation coefficient. Therefore, R is equal to 1 by n is 10 summation xi yi 355 minus x bar y bar 5 into 7 divided by under root 1 by 10 summation xi square 286 minus x bar square 5 square 1 by 10 summation yi square 526 minus 7 square. Current simplify 35.5 minus 35 28.6 minus 25 52.6 minus 49 under root बताएं कितना आई वैल्यू Sir, 0.5 upon 3.6. 0.5 5 upon 3.6. 0.5 अपॉन 3.6 कर दे डिवाइड कितना आ जाएगा 0.139 the value of R is less than 0.5 and close to 0. It means low degree of positive correlation. Value of R is less than 0.5 and R lies between 0 to 0.5. It means low degree of positive correlation. Low degree of positive correlation. Between x and y. जो हम चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ये जो हमने क्वेश्चन किया इसमें जो डाटा था वो कुछ लार्ज वैल्यूज नहीं थी तो इसी कारण कैलकुलेशन इजी थी अगर एक्स वाई की वैल्यूज लार्ज हो काफ़ी
तो उस केस में हम उसको शिफ्ट करते हैं, अजूम्ड मीन लेंगे, तो उससे फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और ऐसा करने से जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है उसमें कोई चेंज नहीं आती। क्वेश्चन, कैलकुलेट the coefficient of correlation between x and y from the following data. From the following data. X, Y, 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85, 60, 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 30. Y, 35, 90, 70, 40, 95, again 40, 60, 80, 80, 50. इसका आंसर लिखा 0.903।